Welcome, student. Today we will start with the Newton's laws of motion. In Newton's law of motion, we will take the first topic, motion of connected bodies. Before we make a start of this topic, हमें इसके कुछ बेसिक concepts पर काम करना पड़ेगा. This is my WhatsApp number 6260320543. So let's start with the heading Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. ओके सबसे पहली हेडिंग हम इसमें करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस. टाइप ऑफ फोर्सेस. तो सबसे पहले हम लिखेंगे फील्ड फोर्स. फील्ड फोर्सेस. These are the forces in which contact, इसको ध्यान रखिएगा, in which contact between two bodies are not necessary. Sorry. Gravitational force, electrostatic force, are field forces. अब सेकंड हम करेंगे कांटेक्ट फोर्स. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कांटेक्ट फोर्स. व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, तो इसको थोड़ा पहले ब्रीफ करेंगे. व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी, they will apply equal and opposite force on each other. So such type of force is called contact force.
तो इसको हम लिखेंगे when two bodies are in contact with each other, they apply equal equal and opposite forces on each other. They apply equal and opposite forces on each other. अब देखिए कांटेक्ट के कारण डेवलप होने वाला फोर्स, तो उसमें हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे. इफ द कांटेक्ट इज फ्रिक्शनलेस, जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है. द कांटेक्ट फोर्स इज the contact force is perpendicular to common surface. ये बात आप याद रखिए, is perpendicular to common surface and known as normal reaction. Known as normal reaction. तो आप इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. When you are done with it, tell me. Okay. अब देखिए यहीं से फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की स्टार्टिंग होती है कांटेक्ट फोर्सेस से. इसमें दो बातें आती हैं, कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस है या विद फ्रिक्शन है. तो फ्रिक्शनलेस में जब फ्रिक्शनलेस होता है तो कांटेक्ट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस एंड नोन एज नॉर्मल रिएक्शन. अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन को हम दो लेटर्स से बता सकते हैं. is represented by R or N. Represented by R or N. अब जैसे देखिए एग्जाम्पल 1. A block of mass M is kept on horizontal plane. Friction is absent. देखिए mg weight
of mass m, weight of mass m. mg क्या है? weight of mass m है. You know it very well. It is the force applied by earth on mass m. Since mass m is in contact with horizontal surface, so mass m will apply this force on horizontal plane. Contact है. Now this is n. N. It is the force of reaction. Force of reaction applied by horizontal plane. Applied by horizontal plane on mass m. On mass m. That is why we have n equal to mg. आप इसे n भी बोल सकते हैं. You can denote it by n or by r. That is called a normal reaction. So why n is equal to mg? Here there are two bodies. One is horizontal plane, another is mass. They are in contact with each other. वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे. डेफिनेटली मास हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, तो वो अपने वेट के इक्वल फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अप्लाई करेगा. So horizontal plane, that is why the horizontal plane will also apply the force on this mass. क्योंकि मास ने हॉरिजॉन्टल प्लेन पर फोर्स अप्लाई किया है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी मास पर फोर्स अप्लाई करेगा. इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए हम बोलते हैं n इक्वल टू mg. These two forces are equal and opposite because there is no friction. There is no friction. So it is clear कि whenever a mass is kept on horizontal plane, normal reaction is equal to the weight of mass. It is equal to the weight of mass. It is equal to the weight of mass. Okay, if you are done with it, similarly, अब आप देखिए, you consider two masses, m1 and m2. They are in contact with each other. तो यहाँ हम फोर्सेस कौन कौन से इन पर अप्लाई होंगे, तो आप देखिए
पहले तो ऐसे सोचिए, ये M1 है और ये M2 है। They will apply N3 and this is N3. They will apply equal and opposite forces और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसकी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी N1, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा M2G, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी N2। तो अगर हम इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में हम किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को बताते हैं। तो M1 पे एक फोर्स लग रहा है M1G, दूसरा फोर्स लग रहा है N1 और एक फोर्स लग रहा है N3 जो M2 ने अपने कांटेक्ट के कारण लगाया। उसी तरह ये सीखना पड़ेगा आपको, M2, M2G, N2 और इस पर भी एक फोर्स लग रहा है जो M1 अप्लाई कर रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स ये M1 अप्लाई कर रहा है, तो ये N1 नहीं होगा, इसको हमने अभी डिफाइन किया है, क्या होगा, ये N3 होगा। इस तरह से सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि किसी भी बॉडी पर अप्लाई होने वाले हम फोर्सेस को कैसे बता सकते हैं। यहाँ M1 का हॉरिजॉन्टल प्लेन से कांटेक्ट था, M1 का हॉरिजॉन्टल प्लेन से कांटेक्ट था, ठीक है। तो उस कांटेक्ट के कारण ये पेयर ऑफ फोर्सेस डेवलप हो गए M1G और N1। पर M1 का कांटेक्ट M2 के साथ भी है, तो M2 भी उस पर एक फोर्स लगाएगा। हमने सपोज कर लिया M2 ने M1 पे कितना फोर्स लगाया, N3। अब आते हैं M2 पे। M2 का कांटेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ था, तो M2G वेट, दूसरा फोर्स हो गया N2। पर ये M2 M1 के साथ कांटेक्ट में है, तो M1 भी उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस तरह से हम फोर्सेस को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अच्छे से पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डिफरेंट फोर्सेस, कौन से डिफरेंट फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। जब हम इसको समझेंगे तभी हम आगे कुछ इसमें अच्छा कर पाएंगे। एक और एग्जांपल से इसको नरेट करने की कोशिश करते हैं। आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। 3 बॉडीज का भी कांटेक्ट हो सकता है। सो यू आर डन विद दिस। शुरुआत से क्लासेस अटेंड करिए आप, तो यू विल फाइंड इट बेटर। बहुत सारे लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है बच्चों, एग्जाम आपको देना है। तो कांटेक्ट हमेशा याद रखिए, कांटेक्ट में पेयर ऑफ फोर्स डेवलप होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो जिससे आपको ये सब चीजें अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, लेट दिस इज M1, लेट दिस इज M2, लेट दिस इज M3। ये 3 ब्लॉक हो गए और तीनों ब्लॉक फ्लोर पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। अब फोर्सेस बताते हैं। सबसे पहले M1, M1G और ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन N1। फिर M2 पे आते हैं, M2G, फिर ये हो गई इसकी नॉर्मल रिएक्शन N2। फिर आते हैं M3G, M3G, फिर इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया N3। तो ये तो फ्लोर के साथ कांटेक्ट डिस्कस कर लिया। अब M1 का कांटेक्ट किसके साथ है, M2 के साथ है। तो M2 फोर्स लगाएगा M1 पे और ये फोर्स होगा N4। मान लीजिए यहाँ पर, अब हम थोड़ा सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, लेट कांटेक्ट फोर्स between M1 and M2 is N4 and between M2 and M3 is N5। नंबरिंग देते चलो। अब देखिए M1 का डायग्राम बनाएंगे।
फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग बहुत सिंपल है। उसमें हम जब भी हम किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ये M1 का बना लेते हैं, ये हो गया M1 G, ये हो गया N1 और एक फोर्स लगाया N4, कांटेक्ट बिटवीन M1 एंड M2 इज N4। फिर M2 का डायग्राम बनाएंगे, M2G N2 और ये फोर्स पर M2 का डबल कांटेक्ट है, M2 का डबल कांटेक्ट है M3 से भी, तो M3 भी उस पर फोर्स लगाएगा और M3 राइट में है तो फोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, दैट इज N5। अब हम M3 पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करें, M3 से लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करें, बताइए। ये हो गया M3G, ठीक है, ये हो गया N3। फिर देखो M3 का कांटेक्ट किसके साथ है, किसके साथ है, M2 के साथ है, तो M2 भी उस पर फोर्स लगाएगा। बाएं तरफ रखा है ना, लेफ्ट साइड रखा है, तो लेफ्ट साइड से फोर्स आएगा। सो तो सबसे पहले तो आपको इसको सीखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा। वंस यू लर्न इट, जब आप सीख जाते हैं इसको तो चीजें क्या होती हैं और बेटर हो जाती है। देखिए जो मॉड्यूली होते हैं, जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसमें 12th 11th और ड्रॉपर में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही रहते हैं, कंटेंट रिमेन सेम। तो मॉड्यूली होना चाहिए आपके पास। और 12th के मॉड्यूली में ये होता है कि थोड़ा डेरिवेशन भी अलग से दिए जाते हैं, ड्रॉपर के मॉड्यूली में नहीं दिए जाते, बस इतना डिफरेंस रहता है, लेकिन बाकी ऑब्जेक्टिव कंटेंट्स, सॉल्व एग्जांपल्स, सभी चीजें सेम रहती हैं। तो ये देखिए जब आप कॉन्टेक्ट फोर्स समझ गए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, व्हेन मास m is kept on inclined plane, तो सबसे पहले तो आप देखिए weight always acts in vertically downward direction, so this is normal reaction perpendicular to the common surface। अब हमें थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल हो जाएगा 90, दिस एंगल विल बिकम 90 माइनस थीटा, तो डेफिनेटली अब आप देखिए ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो इसमें वेट को हम रिजॉल्व करेंगे, ये वेट इस लाइन से, अब आप देखिए वेट इस लाइन से कितना एंगल बनाता है थीटा, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा 90 डिग्री पे। इसको सीख लीजिए, इस डायग्राम को याद रखिए, mg sin थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए ये मास m को जब हम एक इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे तो वो इट विल टेंड टू मूव डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा,
क्यों मूव करेगा? mg साइन थीटा के कारण। तो डेफिनेटली यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? आप देखिए, जस्ट लुक एट हियर, n के अपोजिट क्या है? n के अपोजिट क्या है बताइए? mg cos थीटा। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर? n इक्वल टू mg cos थीटा। बिल्कुल ये याद होना चाहिए। ये जो फोर्स डायग्राम बनाया है आपके लिए, बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। फोर्स को रिजॉल्व करना आना चाहिए। फोर्स को रिजॉल्व करना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जिस लाइन से वेट थीटा एंगल बनाता है वहां रिजॉल्व पोर्शन जाएगा कॉस, और उससे 90 डिग्री पे जाएगा साइन। अब मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली सब लोगों को बता दूं। देखिए, ये फोर्स है एफ, ये इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इसका रिजॉल्व पार्ट क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और इससे 90 डिग्री पर क्या होगा? एफ साइन थीटा। अगर मान लीजिए फोर्स ऐसे है, इस लाइन से वो थीटा बना रहा है, तो उसका रिजॉल्व पोर्शन यहाँ आएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा से एफ साइन थीटा हमेशा 90 डिग्री पर होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स ऐसे हो, तो ये रिजॉल्व पोर्शन आएगा एफ कॉस थीटा। एरो देखिए, एरो नीचे की तरफ है, इसलिए एफ साइन थीटा नीचे की तरफ आएगा। फोर्स को रिजॉल्व करना आप सीख लीजिए। और ये 4 पॉसिबल केसेस होते हैं, 5वां होता नहीं है। सॉरी। इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको चारों केसेस करके बता दीजिए। इसमें कभी कंफ्यूजन मत करिए, ये बहुत सिंपल है। जिस लाइन से फोर्स थीटा एंगल बनाता है वहां हमेशा रिजॉल्व पार्ट क्या जाता है? एफ कॉस थीटा। फिर एरो देखो, ये देखो, ये एरो कहाँ है? ऊपर की तरफ है, इसलिए एफ साइन थीटा यहाँ जाएगा। ये एरो देखिए आप, एफ कॉस थीटा ऐसे है, तो इससे 90 डिग्री पर क्या जाएगा? एफ साइन थीटा। दीज आर द 4 केसेस, आई थिंक यू शुड नोट इट नाउ। और इसीलिए हमने यहाँ देखिए, mg इस लाइन से कितना एंगल बनाता था? थीटा। तो हमने बोल दिया mg cos थीटा, 90 डिग्री पर इसी तरफ आएगा mg sin थीटा। और यहाँ चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड ड्यू टू mg sin थीटा। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक डाउनवर्ड इक्वल टू g sin थीटा। ये दो बातें बिल्कुल आपको क्या हो जानी चाहिए? क्लियर हो जानी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। First of all, we need to understand the force analysis. तो मुझे लगता है अब ये क्लियर हो जाना चाहिए।
ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इस लाइन से फोर्स कितना एंगल बनाता है थीटा, तो ये हो जाएगा f cos theta and this will be f sin theta. First of all, before we make a good start with the Newton's law of motion, यहाँ मैंने आप लोगों को पढ़ाने की थोड़ी स्ट्रेटेजी में चेंज किया है यहाँ से. So we will cover each and every basic zero fundamentals also. And I want that in next coming examination you should attempt and score. तो आगे बढ़ते हैं. देखिए, स्ट्रिंग फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन. अब देखिए, सपोज करिए दिस इज अ मासलेस स्ट्रिंग. ये जो डोरी है इसमें मास नहीं है. And at the lower end of string we have connected a mass m. अब आप देखिए mg, force of gravity, force applied by, सोचिएगा, by mass on the string. तो ये जो mg है ये स्ट्रिंग को तानेगा, खींचेगा, स्ट्रेच कर देगा. तो इसे हम बोलेंगे फोर्स ऑफ एक्शन T, फोर्स ऑफ टेंशन T, फोर्स, क्योंकि यहां स्ट्रिंग और मास का कांटेक्ट है. यहां पर स्ट्रिंग और मास का कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो जाएगा. whenever two bodies are in contact there is a contact force which occurs in pair, equal and opposite. तो T को फोर्स ऑफ टेंशन बोलते हैं. और एक मिनट, इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे. फोर्स ऑफ it is also the force applied by, एरो की डायरेक्शन देखिए, फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग on the mass, on the mass. So T equal to mg, action equal to reaction. तो यहाँ मास m का स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट है, तो मास m, ग्रेविटी का फोर्स हो गया mg, पर मास m किससे कनेक्टेड है? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो वो स्ट्रिंग को इस फोर्स से पुल करेगा. तो स्ट्रिंग भी इन रिटर्न, द स्ट्रिंग विल आल्सो अप्लाई, रिटर्न में स्ट्रिंग भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, पर स्ट्रिंग के फोर्स को नाम दे दिया गया फोर्स ऑफ टेंशन. दो बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं, वो आपको लिखना चाहिए. पॉइंट नंबर 1, फोर्स ऑफ टेंशन इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग. अभी सेकंड सेशन में 6 या 7 लोग गायब हो जाते हैं. गायब हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया है. फिर बच्चों अगली क्लास में बिल्कुल दिमाग को बंद करके बैठना, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आज का जो सेकंड सेशन है उसमें एप्लीकेशन पार्ट है. एंड इफ यू मिस दैट यू आर इन ट्रबल. मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया. और दूसरा पॉइंट आप लिखिए, हमेशा ध्यान रखिए, फोर्स ऑफ टेंशन is always directed towards point of suspension. Point of suspension आप लिख लीजिए, is always directed towards the force of tension is always directed towards the point of suspension. जिस पॉइंट से स्ट्रिंग को अटैच किया गया, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा उसी पॉइंट की तरफ होगी, ये मैं बताना चाहता हूं.
ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. Tension is always directed towards the point of, so T equal to mg. तो मैं फिर से ये अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं कि अभी जो सेकंड सेशन होगा उसमें काफी एप्लीकेशंस होंगी, और मुझे पता चला है, हमें यहाँ बैठ के सब पता चल जाता है कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कितने लोग. मैंने 6 या 7 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है, मैं उन्हीं लोगों का बगैर नाम लिए बोलना चाहता हूँ. आप लोग ऐसा काम नहीं करिए. फिर अगली क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सो यू आर डन विद दिस. तो ये कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए. मॉडुली के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज कॉमन. कोई बस कोई खास फर्क नहीं होता है. कोई भी खास फर्क नहीं होता है. देखिए अब थोड़ा और इस चीज को और लर्निंग प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते हैं. ब्लॉक, ध्यान दीजिएगा, ऑफ मास एम इज अटैच्ड with 2 strings as shown in figure. Draw the free body diagram. Of block. तो देखिए अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं. हमने मान लिया यहाँ टेंशन कितना है, T1. तो यहाँ टेंशन क्या होगा, T2. इसका वेट mg. और आप चाहे तो टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, T2 को T2 cos थीटा, एंड दिस विल बी T2 sin थीटा. ड्रॉ कर लीजिए. सो इट इज वेरी सिंपल. इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो इस तरह से हम फोर्सेस को क्या कर सकते हैं. देखिए ये स्ट्रिंग है जो आपको पहली स्ट्रिंग दिख रही है, मैं इसको फर्स्ट स्ट्रिंग बोल देता हूँ. पहली स्ट्रिंग मास पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी, T1. मास पर mg किसने अप्लाई किया, अर्थ ने. दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, ये भी मास पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी, T2. T2 यहाँ थीटा एंगल बनाता है, तो हमने T2 को रिजॉल्व कर लिया, T2 cos थीटा, T2 sin थीटा. अब ये सिंस मास इज एट रेस्ट, सिंस मास इज एट रेस्ट में है, सो नेट फोर्स इज 0. इसलिए हम कह सकते हैं T1 किसको बैलेंस करेगा, T2 cos थीटा को, और T2 sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को. बस. और इसको आप रिवाइज करिए. These are the basics.
तो इक्विलिब्रियम का एक कंसेप्ट बहुत क्लियर है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी पहली एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एप्लीकेशन। क्वेश्चंस आर कॉमन इन मोस्ट ऑफ द बुक्स। क्वेश्चन नंबर 1, two blocks of mass 4 kg and 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal plane as shown in the figure. As shown in the figure, a horizontal force (20 Newton) is applied on 4 kg block. 4 kg block. Find, question number 1, the acceleration of each block. Question number 2, the normal reaction. मतलब force of contact between the two blocks. Between the two blocks. So this is your diagram. For kg. This is 2 kg. And this is 20 Newton. तो इसको नोट कर लीजिए. तो we will solve this question in next slide. इसको फिर हम अगली स्लाइड में सॉल्व करेंगे. अब देखिए, देयर इज ए कॉन्टेक्ट बिटवीन 4 kg एंड 2 kg. क्योंकि जो यहाँ पे मोशन ऑफ ब्लॉक होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा. पहली बात, ये दोनों ब्लॉक कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स राइट. दूसरी बात, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है. सो दे विल मूव टुगेदर. इसलिए वो साथ मूव करेंगे. इसलिए वो साथ मूव करेंगे तो उन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी. एक्सेलरेशन निकालने का आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ. फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. फोर्स एट 20, टोटल मास कितना है 4 + 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 20/6. वेरी सिंपल, 10/3. डायरेक्ट अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर ही सकते हैं, निकाल ही सकते हैं. कितना आ गया 10/3. अब फ्री बॉडी डायग्राम से करें. दूसरी चीज, 4 kg और 2 kg का कांटेक्ट है तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में. लेट
contact force between 4 kg and 2 kg is F. ये देखिए, ये किसने अप्लाई किया? 2 ने। और इधर से कितना फोर्स आ रहा था उसमें? 20। अब 2 kg पर का कांटेक्ट किसके साथ है? 4 के साथ है, क्योंकि 2 ने 4 पर F अप्लाई किया था, तो 4 भी 2 पर कितना अप्लाई करेगा? F के इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा। और देखिए, ध्यान दीजिए, 20 न्यूटन 2 kg पे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो 4 kg पे लग रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पे हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं, 20 माइनस F, नेट फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास multiplied by acceleration. So 20 minus F, mass is 4, acceleration is A. अब यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, फोर्स है F, मास है 2, एक्सेलरेशन है। इस तरह हमने कितने इक्वेशन बना लिए? 2 इक्वेशन बना लिए। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखो, 2 इक्वेशन बन गए, उसके बाद 1 + 2 करो, दोनों को ऐड कर दो, तो कांटेक्ट फोर्स देखो कैंसिल हो जाएगा। 4A + 2A 20 = 6A। ये हमने अभी पहले भी किया था, 20/6 दैट इज 10/3। अब सेकंड इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी। सेकंड इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं। सेकंड इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू रख दी, 2 × 10/3, तो कितनी वैल्यू आ गई? 20/3। तो इट इज वेरी इजी, it is very easy to calculate the contact force। इसको नोट कर लीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करिए, जैसे मैंने 4 kg और 2 kg का एक क्वेश्चन बनाया, तो आप बना लीजिए 6 kg 2 kg 3 kg 2 kg। मैंने फोर्स यहाँ आपको बताया 20, आप लीजिए अपने क्वेश्चंस खुद बनाओ, 30 फोर्स ले लो, 40 फोर्स ले लो, अपने क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर सकते हैं रिवीजन के लिए, पर अंदर से बहुत ताकत होनी चाहिए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब ये नहीं है दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, फोर्स थोड़ी सेम होगा। न्यूटन तो न्यूटन डाइड, चिल्ला चिल्ला के वो मर गया, बोल बोल के कि भैया कि नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है, फोर्स भी मास पे डिपेंड करता है, दोनों का मास सेम है क्या? इतना कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, जितना बताया आपको उतना आप बिल्कुल सीधे सीधे पढ़ो, यहाँ बुद्धि का प्रयोग मना है। डोंट यूज योर ब्रेन, लर्न इट, इसको प्रोग्राम करो माइंड में। अब ऐसा देखिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 4 kg पर फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, और ये सिचुएशन ऐसे है, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर लाइक दिस। अभी हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं? 2 kg पे लगा रहे हैं, 20 न्यूटन। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे, कांटेक्ट फोर्स हमने वैसे ही मान लिया, 2 पर कितना फोर्स लग रहा है? 20 जो अप्लाई कर रहे हैं, और 4 भी लगाएगा कांटेक्ट फोर्स F, इसकी एक्सेलरेशन A है, दोनों साथ मूव करेंगे। आप कंसेप्ट को घुमाइए मत, सीधा सीधा पढ़िए, अननेसेसरी इसको टफ मत बनाइए। 4 का कांटेक्ट किसके साथ है? 2 के साथ है, तो 2 भी उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, बस बन गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस पे लगा दो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2A, इक्वेशन 1 इस पे लगा लो, F इक्वल टू 4A, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, स्पीड से काम करो, तो 20 = 6A, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10/3, पर कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर क्या है? 4A, तो 4 × 10/3, तो कांटेक्ट फोर्स कितना आ गया? 40/3 न्यूटन। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, इनको सिंपल वे में प्रोग्राम करिए और करिए,
यहाँ अपना उल्टा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइए आप, डोंट यूज दैट, इट हैज बीन डन। आप खुद बना सकते हैं क्वेश्चन। दोनों बॉडी साथ मूव करेंगी बिकॉज दे आर इन कांटेक्ट। जब ट्रेन की बोगीज कांटेक्ट में होती है तो साथ मूव नहीं करती। अब कांटेक्ट ये सिंपल कांटेक्ट है, दो ब्लॉक्स के कांटेक्ट के लिए हम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। जब 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 कांटेक्ट होगा दो बॉडीज के बीच में तो फोर्स ऑफ कांटेक्ट डेफिनेटली डेवलप होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम 3 ब्लॉक्स पर ले जाते हैं। कितने ब्लॉक्स पर ले जाते हैं? 3 ब्लॉक्स पर ले जाते हैं। एक्सलरेशन है ये, तो आपने लिख लिया ऐसे। अब हमें थोड़ी जल्दी जल्दी फटाफट करना है, थोड़ा स्पीड से काम करना है। आप लोगों को जो सिखाया जा रहा है आप उस पर स्टिक रहिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। आपसे आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। पहले एग्जाम क्लियर करिए, रिसर्च बाद में कर लीजिएगा। रिसर्च की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो 3 ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखिए, हेडिंग डाल देते हैं, फाइंड द एक्सलरेशन of each block and also find contact forces between the blocks, between the blocks। 3 kg, इसका कांटेक्ट है 2 kg के साथ, 2 kg का कांटेक्ट है 1 kg के साथ। और फोर्स कितना लगा रहे हैं? दे आर ऑल kept on a frictionless floor and the force is applied 12 Newton on which block? 3। तो अब सबसे पहले 3 का डायग्राम बनाते हैं। 3 पर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो 12 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल मोशन है इसलिए वर्टिकल फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया जा रहा। पर 3 का कांटेक्ट किसके साथ है? 2 के साथ है। तो सपोज करो कि कांटेक्ट फोर्स कितना है? F1। बन गया डायग्राम। अब 2 पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 के कॉन्टेक्ट्स देखो, 2 का एक कांटेक्ट है 3 के साथ, तो ये हो गया F1। और एक कांटेक्ट है 1 के साथ, तो 1 लगाएगा मान लीजिए F2। अब 1 का कांटेक्ट देखो, सिर्फ एक ही है 2 के साथ, क्योंकि 1 ने 2 पर F2 लगाया था तो ये भी उस पर F2। अब न्यूटन्स लॉ लगाओ, 12 माइनस F1 नेट फोर्स मास इनटू एक्सलरेशन, इक्वेशन 1 इस पे लगाओ। F1 माइनस F2, क्योंकि ये राइट में जा रहा है, ये भी राइट में जा रहा है, ये भी राइट में जा रहा है। F1 माइनस F2 इक्वल टू 2a, सेकंड इक्वेशन। तीसरे पर इक्वेशन लगाओ, एक ही फोर्स है, F2 इक्वल टू 1 है। नेट फोर्स निकालने के लिए माइनस क्यों किया? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट थे। अब कितने इक्वेशन बन गए? 3 इक्वेशन बन गए। तीनों इक्वेशंस को क्या करो? तीनों इक्वेशंस को क्या करो? ऐड करो। ऐड करिए, करके देखिए। 12 माइनस F1 प्लस F1 माइनस F2 प्लस F2, राइट हैंड साइड को भी ऐड करो। 3a प्लस 2a प्लस 1a। अब कैंसिल करने का काम करते हैं, चलो। F1 से क्या कैंसिल हुआ? F1। और दूसरा कैंसिल हुआ F2 से F2। तो बचा क्या? बचा क्या? 12 इक्वल टू 3 प्लस 2, 3a प्लस 2a, 5a प्लस 1 है 6a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस a की वैल्यू को हम अलग अलग इक्वेशन में रख देंगे तो हमें फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट करिए। Okay, are you done with this?
ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसको सिंपल ही रहने दो। एक्स्ट्रा थॉट लाके इसको आप कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी मत बनाइए, इसमें कॉम्प्लिकेशन के लिए कोई भी जगह है ही नहीं। अब हमने ए की वैल्यू निकाल ली, सॉरी 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू 2 पुट करने वाले हैं, ठीक है। फिर थर्ड में पुट कर देंगे, ये तीसरा इक्वेशन था। अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। 12 माइनस f1 इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू 2 दैट इज 6। 12 माइनस f1 इक्वल टू 6, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 12 माइनस 6, कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू f1, सो f1 इक्वल टू 6 न्यूटन। अब थर्ड इक्वेशन f2 इक्वल टू 1a निकाल लीजिए, 1 इंटू 2, तो f2 इक्वल टू 2 न्यूटन। तो इस तरह से हमने कांटेक्ट फोर्स को क्या कर लिया, कांटेक्ट फोर्स को हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट ही कर लिया। So this is masses can be connected by string also, तो वो केसेस भी हम कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हैं, यू कैन मेक इट, बना लीजिए आप 1 2 3, चलो ले लो 6 kg 4 kg 2 kg। और देखो अब आपको क्वेश्चन डिजाइन करना है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 6 और 4 को ऐड करिए, 6 kg 4 kg को ऐड करिए, कितना आएगा 10 kg। 10 kg और 2 kg को ऐड करिए, कितना आएगा 12 kg। तो फोर्स ऐसा लगाइए जो 12 से डिविजिबल हो। चलो कितना फोर्स लगा दिया, 240 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन, आप खुद करके देखना अभी, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बहुत सिंपल है, बिल्कुल रिपीट करा करो, एक क्वेश्चन को 2 बार करो। एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस between the block, between the blocks, that's all। ये आपका क्वेश्चन बन गया, जिसे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। Are you done with this? तो ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद क्लास दोबारा चालू होगी, प्लीज कम, डू नॉट मिस इट।